So hello everyone, welcome back to our channel Masterminds. So today we have come up with a new topic that is the Mauryan art and architecture, जो कि बीपीएससी 71st और 72nd और किसी भी फर्दर होने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए इतना सिग्निफिकेंट है कि ऑलमोस्ट ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछते हैं वो 38 मार्क्स वाले पूछते हैं, कभी कभी शॉर्ट आंसर्स में भी पूछ लेते हैं। तो ये जो नोट्स है वो मेरा खुद का बनाया हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि जो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, टोटल फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या है, और उसके बारे में सारे एस्पेक्ट देखेंगे ताकि वंस इन फॉर ऑल आप इसको देखो तो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपके दिमाग में परमानेंट छप जानी चाहिए। और इसको 2-3 बार लिख के अपने शब्दों में प्रैक्टिस कर लेना है ताकि जब एग्ज़ाम में जाओ आप तो एज इट इज़ उसको रिप्लिकेट कर पाओ। एंड ट्रस्ट मी, आउट ऑफ 38 यू विल बी गेटिंग 22 to 23 मार्क्स। अगर आप जितना इसमें कंटेंट है आप उसका 30% भी अगर रिप्लिकेट कर पाओगे तब मिल जाएगा आपका। सो आई होप कि दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू गाइज। सो लेट अस बिगिन द टॉपिक। तो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो उसके ना दो सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला एक होता है कि कोर्ट आर्ट और दूसरा हो गया फोक आर्ट। तो जो कोर्ट आर्ट होते हैं जो वो बड़े ग्रैंडियर टाइप के बनाए जाते हैं, बहुत पैसा उस गवर्नमेंट के पास होता है, एम्पायर के पास होता है, तो इतने पैसे लगा के वो बनाते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या उसके थे कोर्ट आर्ट में। सो द फर्स्ट वन वॉज स्तूपा, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट था। स्तूपा। सेकेंड वन इज palaces, which is also very significant. Third is the pillar. Now we'll see the caves, guha vihar, and the folk arts. Folk arts includes like caves, sculptures, pottery, etc. So as an acronym you can remember it as like a CGSPP. CGSPP means, as it's an acronym, आप याद कर सकते हो। C stands for caves, G stands for गुहा विहार, S stands for stupa, P stands for palaces, and P stands for pillars. Similarly, in folk art, you can remember it's like a CPS. CPS means caves, sculptures, and pottery. Or you can say PSC, pottery, sculptures, and caves. Now we'll see. Now we'll see one by one the modern art and architecture. So the first one is the palaces. So we all know about the Kumrahar Palace of Patna. So Kumrahar Palace of Patna is very famous. It was built by the Chandragupta Maurya, and it was built with wood. Later Ashoka, what he did, he built it with a stone. So till the time of Chandragupta Maurya, most of the architectures were built with the wood, and it is having 84 pillars of dimension. Length is having 140 feet and width is having 120 feet. The pillars were made up of mostly it was made up of red sandstone, and it is a copy of 1000 pillar palace of Persian king Darius I. So it has an influence of Persian king also, yeah, Persian emperor also. Patliputra, it is also known as the Jal Durg. Why it is known as Jal Durg? Because it is at the confluence of Ganga, Son and Punpun river. So it is known as the Jal Durg. Now we'll see कि some of the historians या फिर some of the उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने क्या बोला था। जो आर्यन थे, he said that the grandeur of Mauryan architecture is more better than the palaces of Shusha and Ekbadna. You see, imagine the situation. Shusha and Ekbadna, they were known as the greatest emperor of that time. उसके उन लोगों के पैलेस से भी इनका जो grandeur था वो ज़्यादा better था. Faience and the Mauryan architectures were built by the god, and the Patanjali also praised it. Now we'll see the stupas. So we all know that the Ashoka was the great patron of Buddhist. So he was a great patron of Buddhism, and he built 84,000 palaces in his entire lifespan. And the prominent ones are Shachi, Bharut, Takshashila, Amravati, and Tamralipti.
So we know that the Ashokan stupas, they were made up of bricks, relics, railings were of wood, and in Pali language it is called the thu or the dhoop. So the most important components or the parts of stupa was the Torana, that is the gate, Vedika, Pradakshinapat, Medhi, Anda, Harmika, and Chatri. So what you can do is you can make a stupa whenever they ask in the answer sheet. You should draw a stupa if it is in 38 marks. So there were mostly four types of stupas they used to form. They used to make. And the first one was the physical stupa. That was mostly the relics placed inside. The second one, it used to be the probhogika, means the item they used to, means Buddha used, they used to use, so that used they used to keep. Third one, it was the preface stupa, जहाँ पे कि जो इवेंट्स थे बुद्धा के लाइफ के वो बताए जाते थे, वो रखे जाते थे. एंड द लास्ट वन वाज द ऋषावेद, दैट इज द प्योरली फॉर वर्शिप पर्पस. सो आप देखो कि कभी आपने इमेजिन किया था कि स्तूपा के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप के स्तूपा होते हैं. So this is the level of information what I have given in this, and this note has been prepared by taking lot of materials from different sources, ताकि एक जगह ये कलेक्ट हो जाए और एक बार आप इसको देख लो तो इससे बढ़िया नोट्स मिलेगा ही नहीं कि आपको किसी भी मार्केट में नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप देख सकते हो. इतने अच्छे नोट्स नहीं होते हैं क्योंकि ये रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ों से बनाया गया है. एंड ये वन स्टॉप सॉल्यूशन एक जगह दिया गया है ताकि इसके बाद आपको कहीं नहीं कुछ देखने की जरूरत पड़ेगी. Now we'll see, we have seen already the palaces, stupas. Now we'll see the third, that is the pillars. So the pillars, why suppose, just imagine that why somebody will make a pillar and why they used to make the pillar. So there were multi-purpose role of the pillar. तो पहला तो ये इसलिए बनाते थे कि it shows the symbol of state, वो दिखाता था. दूसरा था कि the battle and victories. So जो victories करते थे कि वह किस लेवल का विक्ट्री हुआ, कहाँ तक अपना एम्पायर है, उसको दिखाने के लिए पिलर्स लगाए जाते थे कि भाई जहाँ तक पिलर दिख रहा है वो हमारा ही साम्राज्य है. एंड द थर्ड वन, दे यूज्ड टू दैट प्रोपगेशन ऑफ धम्मा. एज अशोका आफ्टर कलिंग वॉर वो कन्वर्ट हो गए बुद्धिज्म में, और उनका जो मेन एम था कि धम्म स्प्रेड करना. तो बहुत सारे पिलर्स ऐसे थे जिनमें कि सिर्फ धम्म लिखा हुआ होता था. धम्म मीन्स मॉरल ड्यूटीज़, लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एनिमल को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसी चीज़ें लिखी होती थी और वो उसको प्रमोट करते थे ताकि सोशल हार्मनी हो और वायलेंस ना हो. एंड मोस्टली देयर वाज वुडन पिलर्स इन पैलेसेस, स्टोन. एंड जो स्टोन पिलर्स होते थे वो होते थे बाहर एरियाज़ में. सो वुडन पिलर दे यूज्ड टू हैव देयर इन द पैलेसेस, और जो आउटस्कर्ट बाहर एरियाज़ में होते थे अपना एम्पायर स्प्रेड करने के लिए, उसमें स्टोन के होते थे. सो द मोस्ट प्रोमिनेंट पिलर इज़ द 4 लायन सारनाथ पिलर, जो कि हमारा एम्बलम भी है, जिसमें क्या है कि हॉर्स है, बुल है, डियर है और एक चरखा है जिसमें कि 24 स्पोक्स है. तो इमेजिन कि कैपिटल जो है वो लायन का है. उसके बाद जो अबैक इन्वर्टेड लोटस है उसमें 4 एनिमल्स है, हॉर्स, बुल, डियर, लायन और एक चरखा है जो कि 24 स्पोक्स है उसमें, जो कि ऑलरेडी हमारा एम्बलम का पार्ट है और इवन हमारे नेशनल फ्लैग का भी पार्ट है. सो नाउ विल सी द फीचर्स ऑफ पिलर्स ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर. तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये फीचर था कि एक मोनोलिथिक होता था, मीन्स एक ही साथ पूरे बनते थे. ऐसा नहीं कि शाफ्ट अलग बनाया, इन्वर्टेड लोटस अलग बनाया, कैपिटल अलग बनाया, एनिमल अलग, अबेकस अलग बनाया और एनिमल ऊपर से अलग बनाया. एक ही स्ट्रक्चर बनाते थे, उसको कार्व करके बनाया जाता था. सेकेंड, इट इज़ अ टेपर शेप. देख सकते हो कि टेपर शेप है, इसको टेपर बोलते हैं, टेपर शेप है जो शाफ्ट होता था. थर्ड, इट इज़ कि 35 to 50 फीट इसका हाइट होता है. तो ये जो हाइट है, टोटल हाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इज यूज टू बी 35 to 50 फीट. जो इसका वेट था वो अराउंड 50 टन, ऐसा माना जाता है कि जो इसका वेट था वो अराउंड 50 टन था. कभी कभी कहीं कहीं कम भी था, कहीं कहीं ज़्यादा भी था, बट ऑन एन एवरेज इट इज अज्यूम दैट वो 50 टन का होता था. तो पार्ट्स से क्या है, तो सबसे पहला पार्ट है इसका शाफ्ट हो गया, इसको शाफ्ट बोलते हैं. फिर उसके बाद इन्वर्टेड लोटस, या फिर इन्वर्टेड लोटस बोलते हैं इसको. फिर अबेकस होता है, फिर कैपिटल होता है. कैपिटल कैन बी ऑफ एनिमल, बहुत सारे एनिमल, लायन हो सकते थे, बुल हो सकते हैं, बहुत सारे एनिमल हो सकते थे. और जो
शार्प होता था, बहुत ही पॉलिश होता था। और जो केमिकल यूज़ करते थे उसको बोलते थे सलेसियस वार्निश। सो सी द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट वी हैव गिवन इन दिस। अगर आप ये लिख दोगे जो किस केमिकल का यूज़ करते हैं उसको पॉलिश करने में, तो वो एक अलग लेवल पे इंप्रेशन देगा। nobody will write such things because nobody is having knowledge about all these things. They used to see superficial level, भाई 2-4 पता है वो लिख देना है, बस उतना नंबर मिल जाएगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। किसी ने एक्सेप्शनली अगर लिखा तो उसको एक्सेप्शनली नंबर मिलेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स के नाम देखते हैं। जो लौरिया राज्य में है वह ओनली शाफ्ट वहाँ पे है, जो वेस्टर्न चंपारण में है। वही लौरिया नंदनगढ़ है वेस्टर्न चंपारण में, वहाँ पे लायन कैपिटल है। कैपिटल मतलब जो सबसे ऊपर में एनिमल होता है उसको कैपिटल बोलते हैं। सांची में लायन है जो वाराणसी के पास है। सनकिस्सा में एलिफेंट है जो फरुखाबाद में है, और बसाड़ में लायन है। नाउ विल सी द कंपैरिजन बिटवीन द मौर्यन पिलर्स एंड द पर्शियन पिलर। तो मौर्यन पिलर जो होते थे वो एक स्टोन के बने होते थे, मोनोलिथिक, ऑलरेडी मैंने बताया। आउटर सरफेस बहुत ही स्मूथ होता था, पॉलिश किया होता था, कोई फाउंडेशन नहीं था, नीचे था नहीं था, कोई फाउंडेशन देकर फिर पिलर बनाते थे, सीधे ज़मीन पर रख देते थे उसको। एंड इट वॉज यूज फॉर द पैलेसेस एंड एडिक्स। ओके, पैलेसेस का यूज़ करते थे, एडिक्स का मतलब उसमें लिख देते थे रूल्स रेगुलेशन धम्मा, उसके लिए यूज़ करते थे। फिर है कि ये टैपर्ड होता था, जैसे यू हैव सीन कि वो टैपर्ड शेप होता है। बट जो पर्शियन पिलर्स थे वो भी स्टोन के बने होते थे, ग्लासी शाफ्ट होता था। और इसमें ना देवर मेनली एक सिंगल शाफ्ट नहीं होते थे, ये बहुत सारे पार्ट्स को, जैसे शाफ्ट अलग हो गया, इन्वर्टेड लोटस अलग हो गया, अबैकस अलग हो गया, एनिमल, सब अलग अलग बनाते थे, उसको असेंबल करते थे। और इसमें जो शाफ्ट जो इसमें पॉलिश था काफ़ी प्लेन होता था, इसमें ग्रुप टाइप के होते थे। एंड दे यूज टू हैव द फाउंडेशन ऑल्सो, फाउंडेशन नीचे अंदर रख करके ताकि गिर ना जाए, उस तरह से बनाते थे, इसलिए ताकि सपोर्ट मिल जाए उसको। और शाफ्ट जो सिलेंड्रिकल होता था। और पिलर्स के साथ साथ कुछ कॉलम्स होते थे। तो कॉलम का क्या यूज़ था, एक तो था स्क्रिप्टेड कॉलम होते थे, जैसे कि आपका दिल्ली मेरठ हो गया, फिर रामपुरवा हो गया और सांची, इसी से में जो कॉलम्स हैं वो स्क्रिप्टेड कॉलम्स हैं, मतलब लिखे होते थे। कहीं कहीं सिंपल कॉलम्स भी थे, जैसे बसाड़ कोसड़ा, ऐसा में जो कॉलम्स थे वो सिंपल कॉलम थे। नाउ विल सी कि केव्स, सी सेपरेट दे आर आस्किंग वीपीएससी समटाइम्स दे यूज्ड टू आस्क इस शॉर्ट आंसर्स में कि सिर्फ केव के बारे में बताओ, मौर्यन केव के बारे में। सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट, सो दिस मच ऑफ इन्फॉर्मेशन इज मोर देन सफिशिएंट टू आंसर द केव्स इन द मौर्यन पीरियड। तो सबसे पहला था कि जो अशोका ने अपने टेन्योर में जो कुछ पिलर्स बनाए, कुछ केव्स बनाए थे, उसके बारे में विल सी। तो उन्होंने बराबर हिल्स जो था वहाँ पे कुछ केव्स बनाए थे, जिसको बोलते हैं सुदामा केव एंड लोमशेशी केव। तो अब सी द लेवल ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन कि जो सुदामा केव था वो 2 चैम्बर के थे, उसमें ओ टाइप का रूफ था, मीन्स सर्कुलर टाइप का रूफ होता था, अनपॉलिश्ड लाइक अ ग्लास होता था। बट लोमशेशी केव में क्या था कि वो स्क्वायर टाइप के चैम्बर होते थे। अनदर इज लाइक आफ्टर अशोका, दशरथा केम इन, मीन्स हिज ग्रैंड सन दशरथा, ही बिल्ड सम ऑफ द केव्स, जो कि नागार्जुनी हिल के पास में बनाया गया था, जो गया के पास में है। जैसे गोपी केव हो गया, विश्व झोपड़ा हो गया। एंड दीज वेर गिवन टू द आजीविकाज एक सेक्ट था जो बिलीव करते थे अपने फेथ पे। सो दे वर द फैटलिस्ट। अदर केव्स हो गए, वदिति केव, वापिया केव, ये सारे केव्स थे। तो इतने केव के बारे में इंफॉर्मेशन है, इतने अगर आप लिख देंगे वहाँ पे तो नोबडी विल बी हैविंग दिस मच ऑफ नॉलेज। नाउ विल सी कि स्कल्पचर्स, अब स्कल्पचर्स में क्या थे कि सम ऑफ द स्कल्पचर्स, नाउ वी हैव शिफ्टेड टू द फोक पार्ट। तो स्कल्पचर्स तो रॉयल भी हो सकते थे और फोक भी हो सकते थे। तो रॉयल जो स्कल्पचर्स होते थे व्हाट दे यूज टू मेक, जैसे कि हमने देखा कि कैपिटल ऊपर में बनाया जाता था, लायन का, बुल का, एनिमल्स का, वो सब बनाते थे, तो वो भी एक स्कल्पचर ही है। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज द सारनाथ का लायन कैपिटल एम्बलम, जो हमारा मोनोलिथिक है एंड हाईली पॉलिश्ड, हाई एक्यूरेसी है उसका। अब फॉक स्कल्पचर जो बनाते थे, मेजरली जो फॉक स्कल्पचर्स थे, दे यूज टू हैव यक्षा एंड यक्षिणी, जैसे कि दीदारगंज में यक्षिणी मिला था, ठीक है। एंड मोस्टली दे वर मेड ऑफ ब्राउन सैंडस्टोन। एंड द टेक्निक जो यूज़ करते थे एंड ऑफ ब्रोंज, और जो टेक्निक यूज, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है कि पहले एक वैक्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसमें जब डालते हैं मेटल, मतलब मोल्टेड मेटल को, तो वैक्स जो एवोपोरेट हो जाता है और वो उसका शेप ले लेता है। और ज़्यादातर रिलीजियस इन्फ्लुएंस थे, जैसे जैनिज्म में जैन तीर्थंकारा फाउंड फ्रॉम लोहानीपुर इन पटना। और ये कार्योत्सर्गा पोर्शन में
मिले थे। तो करियो सर्गा पोस्चर क्या था, आपने देखा होगा कि जो जैन महावीर का जो स्टैचू होता है वो एकदम स्ट्रेट स्टैचू टाइप का पोजिशन होता है, हाथ पूरा नीचे और पूरा बॉडी टाइट, उसको बोलते हैं कार्योत्सर्गा पोस्चर, जो मोशनलेस को दिखाता है और जो मेंटल जो है फोकस पे दिखा वो उसको मेंटल फोकस को वो रेप्लिकेट करता है। एंड दे यूज टू हैव क्लोथ्स एंड ज्वेलरीज इंट्रिकेटली कार्व, अंदर ही इंट्रिकेटली कार्व कर देते थे, पहाड़ से नहीं पहनाते थे, इस तरह से बनाते थे। लाइक यक्षा यक्षिणी ऑफ मथुरा और पटना में जो मिला है वो। फिर बेसनगर में एक बेसनगर में यक्षिणी मिला है, जो बेसनगर कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। एंड एक पड़खम में यक्षा मिला है जो यूपी में पड़ता है। और राजघाट जो बनारस में है वहाँ पे एक यक्षा मिला है। और बुलंदी बाग जो पटना में है वहाँ पे एक स्टैचू मिला है वुमेन एंड चाइल्ड का। एंड कलसी जो हम जानते हैं वहाँ पे एलिफेंट का मिला। और धौली में भी एलिफेंट का स्टैचू बनाया हुआ जो कि उड़ीसा में है। लोहानीपुर ऑलरेडी वी डिस्कस की जैन तीर्थंकर का बनाया हुआ है। एंड वी हैव ऑल्सो सीन कि डांसिंग गर्ल जो पटना में मिला है, और लाफिंग बॉय फ्रॉम द बुलंदी बाग, एंड एट द सेम टाइम लाफिंग नाटी एंड नाटिन, ये भी मिला है पटना से। सो इतने टाइप के फोक स्कल्पचर्स मिले हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, और रॉयल स्कल्पचर्स भी। नाउ विल सी अबाउट द पोटरी। तो पोटरी क्या होता है कि उस समय जो थे सो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पोटरीज बनाए थे जो पेंटेड ग्रे वेयर होते थे, और ज़्यादातर ये गंगेटिक रीजन में मिलते थे। और जब किस तरह से बनाए जाते थे और टेक्निक जो होता था बहुत ही एक्सपेंसिव होता था, तो जो पोट्री होता था वो भी बहुत एक्सपेंसिव दिखते थे और मिलते थे। नाउ विल सी अबाउट द कॉइन्स। सी आर्किटेक्चर क्या होता है कि बड़े स्ट्रक्चर जैसे स्तूपा, पिलर, पैलेसेस, केव, सब आर्किटेक्चर हो गया। और छोटे छोटे जैसे स्कल्पचर हो गए, पोट्री हो गया, कॉइन्स हो गया, ये सारे क्या होते हैं, आर्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसकी कलाकारी दिखती है। सो द कॉइन्स दे वर मोस्टली मेड ऑफ द सिल्वर एंड द कॉपर। और कैसे बनाते थे, तो पंच मार्क बनाते थे। एज इट इज ऑल्सो नॉट द कार्शोपना। तो क्या करते थे, एक पंच टाइप का होता था, और पंच में इनग्रेव किया होता था शेप, और उसको ऊपर से नीचे गिराते थे हैमर के थ्रू, हैमर लाइक, और उसका शेप ले लेता था कॉइन पे। ज़्यादातर सिंबल जो होते थे एलिफेंट होते थे, ट्री होते थे इन रेलिंग्स में, इस तरह के सिंबल होते थे। तो नाउ विल सी कि जो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर था उस पे फॉरेन क्या इन्फ्लुएंस था। तो फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑलरेडी वी हैव सीन। जो पैलेसेस थे, जो पैलेसेस जो थे वो इंस्पायर थे 1000 पिलर पैलेसेस ऑफ पर्शियन से, जो कि किंग दारिया, जिसको बोला था कि जो ग्रैंडियर जो है मॉडर्न आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा अच्छा है, किससे सूझा है, एक बदना से, ये भी बोला गया था। और जो यक्षा यक्षिणी का जो स्कल्पचर है, इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द ग्रीक हेलेनिस्टिक आर्ट से इंस्पायर्ड था। एंड यू नो दैट द अशोकन पिलर्स वेयर हैविंग द लैंग्वेज ऑफ किसके, ग्रीस के, अरमिक लैंग्वेज होते थे। और जो पिलर था वो भी इंस्पायर था पर्शियन पिलर से, दैट ऑलरेडी वी हैव सीन। सो दीज आर द फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। कितनी बारीकी दिखाई गई है, कितने डायमेंशन कवर किए गए हैं। नाउ विल सी अबाउट द सम ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ मॉडर्न पीरियड। तो अगर आप उसका ये भी पूछा जाए कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, उसमें कल्चरल चीज़ें क्या थी, तो वो भी बता सकते हो बड़े अच्छे से। सबसे पहला था कि जो शोगुड़ा प्लेट था और महिस्थान प्लेट था, उसमें दिखाया गया कि फेमिन के बारे में दिखाया गया है। तो फेमाइन जो था, जिसके कारण से कि चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ से छोड़ करके कर्नाटका गए थे। एंड द सेकेंड इट इज़, जो पहला इंस्क्रिप्शन था उसमें ये मेंशन किया था कि एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करने चाहिए, नहीं करना है। उसके साथ साथ अब ये देखो कि कैसे नेचर और एनिमल के बीच में, ह्यूमन और एनिमल के बीच में हारमोनी था। सो देवर हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस, किसमें, सेकंड इंस्क्रिप्शन में। एंड इट वाज अ वेलफेयर स्टेट, जिसको बोलते हैं योगा क्षमा उस समय में वेलफेयर स्टेट को बोलते थे। ठीक है, जैसे कि द हैप्पीनेस ऑफ किंग लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट। क्या मतलब है कि जो सब्जेक्ट, जो जनता है, अगर वो खुश है तो राजा भी खुश है। नॉन वायलेंस, पीस एंड इथिक्स, वो 13th पिलर में। कैसे, जैसे ही अशोक ने कलिंग वॉर जीता, उसके बाद वो धम्म का पात अपना लिए। ठीक है, तो वो नॉन वायलेंस और पीस के रास्ते पर चल दिए। यू कैन ऑल्सो सी द रिलीजियस इन्फ्लुएंस ऑन आर्ट एंड कल्चर। जैसे वही जो आर्ट एंड कल्चर, रिलीजियस इन्फ्लुएंस, मतलब बुद्धिज्म का, जैनिज्म का, सबका इन्फ्लुएंस था उस समय में। एंड हारमोनियस रिलेशन बिटवीन द फॉरेन स्टेट। तो आप देखो कि सेकेंड एंड 13 इंस्क्रिप्शन जो है, इट टॉक्स अबाउट कि हाउ the Mauryan Empire, they used to have very good relation with the neighbor countries, neighbor emperors, and they were having
they were having religious tolerance, like they have given case for the Ajivikas. So you see, religious tolerance भी था, welfare state भी था, नॉन वायलेंस भी नहीं था. सो इट वॉज जस्ट लाइक अ स्टेट जो उस समय में उससे बेस्ट स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था. नाउ विल सी कि बुद्धिज्म का उस पर क्या प्रभाव पड़ा था और कैसे क्या उससे एसोसिएशन था. तो आप पिलर जो देखते हो वो बुद्धिस्ट से रिलेटेड है. स्तूपास हो गया, चैत्यास, विहारास भी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द बुद्धिज्म. जो लोटस उस पर होता है, इन्वर्टेड लोटस, और एनिमल मोटिव जो बोलते हैं, कैपिटल होते हैं, दैट वाज आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द बुद्धाज लाइफ. यू कैन ऑल्सो सी दैट कि अशोका इनकॉर्पोरेट नॉन वायलेंस आफ्टर कलिंग वॉर. एनिमल सेक्रीफाइस की बातें नहीं करते हैं वो, जो कि लिखा हुआ था फर्स्ट इंस्क्रिप्शन में. एंड यक्षा एंड यक्षिणी. सो दीज ऑल वेर इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द Buddhism. So we have seen from different dimension about the Mauryan art and architecture. अब हमें नहीं लगता कि इसके अलावा इससे बाहर कुछ बीपीएससी पूछेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इससे ज़्यादा नॉलेज कहीं भी आपको नहीं मिलेगा. तो आई वुड रादर सजेस्ट यू कि आप इसके अपने हैंड रिटन नोट्स बना लो आप, और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, और इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लो जिसमें समरी टाइप का हो, या फिर एक इंडिविजुअल आर्ट और आर्किटेक्चर पे आप एक हेडिंग पे एक आंसर लिख लो, शॉर्ट आंसर्स, ताकि ये जो टॉपिक है मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर वो आपको अच्छे से कवर हो जाए. और किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन पूछे तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू राइट द आंसर. और उसकी ग्रेविटी इतनी है कि ये आपके सिलेक्शन को इंश्योर कर सकता है. अगर आप छोड़ देते हो और अच्छे से नहीं करके जाते हो, तो जब सबको मार्क्स आएंगे इसमें आपके मार्क्स नहीं आएंगे, तो ट्रस्ट मी आपका सिलेक्शन जो होगा वो खतरे में आ जाएगा. सो जस्ट मेक श्योर कि इसको आप अच्छे से पढ़ के जाओ और रिवाइज करके जाओ. मल्टीपल टाइम अपने हाथों से लिख के रिवाइज करो, ताकि वहाँ पर जब जाओ तो अच्छे से रिप्लिकेट कर पाओ आप. सो दिस इज़ वॉट फ्रॉम आवर एंड आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू.